नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। Namaskar. I welcome Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Rural Development and Panchayati Raj, Shri Narendra Singh Tomar ji. Honorable Minister for Petroleum and Natural Gas and Steel, Shri Dharmendra Pradhan ji. Honorable Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Giriraj Singh ji. Honorable Minister for Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. Minister of State, Shri Ratanlal Kataria ji. I also welcome Shri Atul Chaturvedi and Shri Pankaj Kumar, secretaries and senior officers and friends from the media. Today is the launch of Unified Portal of Govardhan. The key stakeholder ministries are having various biogas programs and policies and schemes which are getting unified and coordinated by the Department of Drinking Water and Sanitation under Swachh Bharat Mission Gramin. First, I will request Secretary Shri Pankaj Kumar ji for opening remarks and setting the context. As you are aware, Honorable Prime Minister launched Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014 to achieve open defecation-free India. SBM Gramin culminated on 2nd October 2019, 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. It was arguably the world's largest behavior change program achieved through the transformative process of a Jan Andolan. More than 10 crore toilets were constructed with people's participation. Government of India approved Phase 2 of Swachh Bharat Mission Gramin in February 2020 with an outlay of 1,40,881 crore. The aim of SBM Gramin Phase 2 is to transform the country's villages from ODF to ODF plus. This requires sustaining the ODF status and waste management. Govardhan, encapsulating the concept of waste to wealth, is a transformative component of SBM Gramin Phase 2 for organic solid waste management. Govardhan aims at supporting villages effectively manage their cattle dung and other agricultural organic waste. The Department of Drinking Water and Sanitation is working with concerned departments and ministries of Government of India, state governments, public and private sector institutions, and village communities to implement Govardhan through a convergent approach. The key stakeholders are Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Department of Animal Husbandry and Dairying, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Department of Agricultural Research and Education, and Department of Rural Development. Biogas schemes like the new National Biogas and Manure Management Program of MNRE, Biofuel Policy and Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation, the Satat scheme of Ministry of Petroleum and Natural Gas, cooperative schemes through the National Dairy Development Board of Animal Husbandry and Dairying Department. All these schemes will play a very important role in achieving the goal of Govardhan. Govardhan envisages support to state governments with technical assistance and financial assistance up to rupees 50 lakh per district to help villages convert waste to wealth
and improve environmental sanitation and curb vector-borne diseases in the process. Community ownership will be the guiding principle of Govardhan initiative. The launch of Govardhan web portal today would facilitate management of organic solid waste in rural India through this convergent approach. Thank you. Thank you very much, sir. Now I invite the Honorable Agriculture Minister and other dignitaries to launch the portal, please. Sir, remote is there. Sir. So, friends, dignitaries, this is a real-time portal. This captures the information relating to all the stakeholders. The list is here. And this is giving real-time information with respect to all the work which has been done. We have started capturing information starting from 2018. And you can see we have the real, this is a screenshot captured, but we can see the real portal also. If you can just shift to the real portal, that will provide the information. We'll just take a second. We'll shift to, yeah. So this is real-time, new entries have been done. So 211 biogas CBG plants are functional, and we can go down, scroll down, and it provides sort of information with respect to the objectives, etc., and also the key performance indicators of various stakeholders captured in the respective icons of the departments and the ministries, and their social feeds are also being captured. This is a unified portal. It's important to note. It's not just a drinking water, sanitation, or Jal Shakti ministries portal. All the departments of Government of India, they are captured here, and states and UTs, they have been given the login and password. They can enter their progress. It's a sort of a repository of all the resources also. We have all the resources in the form of PDF or doc or audio, video. So whatever resources are being generated. So Govardhan is a sort of a capturing everything which is being done in the country with respect to the overall mission of waste to wealth. Within that, converting cow dung and agricultural waste into the biofuel, which is basically either just the biogas or compressed biogas or the biofertilizers. So this is a portal, and we hope that it will help us to really trigger increase farmers' income and also help in the waste management in rural India. Thank you. Thank you very much. Now I request the Honorable Minister for Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, to address the gathering, please. धन्यवाद। गोवर्धन योजना के इस एकीकृत पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय तोमर साहब, मंच पर आसीन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एंड फिशरीज के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह साहब, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव आदरणीय पंकज कुमार जी, मेरे सहयोगी, मेरे साथी मंत्रिमंडल में आदरणीय राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, और पत्रकार मित्रों, अधिकारीगण। जैसा अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सेक्रेटरी साहब ने और इस पोर्टल को इंट्रोड्यूस कराते हुए अरुण बरोका जी, एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने जो बात कही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों से पूरे देश ने एक सपना देखा, और वो सपना था स्वच्छता का। एक नई क्रांति का सूत्रपात देश में हुआ, और हम सब निश्चित रूप से 130 करोड़ लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम और उसी के साथ साथ में दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली पिछले 5 साल में करके दिखाया। जो ओपन डेफिकेशन का आंकड़ा, ओपन डेफिकेटर्स का आंकड़ा पूरी दुनिया में 100 करोड़ था,
और उसमें से 60 करोड़ 60% हिस्सेदारी भारत की थी। और भारत जैसे देशों की प्रगति की दर को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जिस काम के लिए 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया था, हमने 11 साल पहले उसे अचीव किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गत वर्ष 2 अक्टूबर के दिन देश को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया, उस समय अपने आइकॉनिक स्पीच में ये बात कही थी कि यह हमारे लिए एक पायदान मात्र है, कि हम इस जगह एक लैंडिंग है, यहाँ से खड़े होकर के हमको संपूर्ण स्वच्छता की ओर जाना है। हमने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, लक्ष्य को प्राप्ति के मार्ग में एक नए पायदान पर हम पहुंचे। सैनिटेशन मिशन 2 माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिया गया और उसमें उन्होंने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गांव में संपूर्ण स्वच्छता के लिए इसकी आवश्यकता को प्रतिपादित किया और इसके लिए एक रोड मैप तय किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो घटक है उसमें गांव में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बायो वेस्ट एज वेल एज गोबर, जो गाय का या जो हमारा पशुधन का गोबर होता है, वो उसके लिए उसका सबसे बड़ा उत्तरदायी भी और सबसे बड़ा घटक भी है। कालातीत में परंपरागत रूप से उसे खाद के रूप में प्रयोग लिया जाता था, अभी भी लिया जाता है, लेकिन क्योंकि सिंथेटिक पेस्ट और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण से उनके उपयोग की प्रवृत्ति कम हुई है और वो यत्र तत्र इसी तरह से बिखरा हुआ रहता है। विषय इतना था कि इसको जो है हम किस तरह से इसको एक कंचन के रूप में, वेल्थ के रूप में किस तरह से उपयोग कर सकें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य पद्धति है, जो विजन था, वो ये था कि हम एक काम को करके मल्टीपल चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। सैनिटेशन को, गोबर गांव का यदि समाप्त हो जाए तो निश्चित रूप से जो है सैनिटेशन के स्टैंडर्ड को, लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके साथ साथ में जो है हेल्थ इंडिकेटर्स पे, अगर स्वच्छता का, जैसा सैनिटेशन मिशन 1 में जब हमने शौचालय बनाए थे और उसका जो परिणाम हुआ 10.5 करोड़ शौचालय बनाने का, उसके ROR को जिस तरह से पूरी दुनिया की संस्थाओं ने एनालाइज किया कि वो 4 गुना तक ROR मिला है हमको, 400% तक। देश के जो है हेल्थ इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। लोगों की प्रति व्यक्ति, वर्ल्ड बैंक का भी स्टडी है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की भी स्टडी है कि प्रति व्यक्ति जो प्रति परिवार जो एक्सपेंडिचर ओवर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होता था वो लगभग 50,000 रुपये प्रति वर्ष एवरेज कम हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बहुत हेल्थ के पैरामीटर पर भी हमने बहुत बड़ी सफलता उसके द्वारा इनडायरेक्टली अर्जित की। गोवर्धन मिशन को अगर ठीक मायने में जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, अगर हम उसे लागू करते हैं तो निश्चित रूप से जो रिन्यूएबल एनर्जी में भारत जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है और उसमें जिस कमिटमेंट के साथ में भारत बढ़ रहा है, वो भी निश्चित रूप से एड्रेस होता है। एक हमको बायो CNG जो मिलती है तो ऑल्टरनेटिव ग्रीनर फ्यूल के भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में चौथा विषय कि हम अपनी इकोनॉमी पे जो इंपोर्ट के कारण से जो बर्डन है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल के इंपोर्ट के कारण से, इसको जो है उसमें कुछ अंश तक उसमें कमी लाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में 5वां ये पोर्टल जिसको आज लॉन्च किया है, पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी, जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा देश उसको साक्षात रूप में देख सके कि किस स्तर पर प्रगति हो रही है। और इसके साथ साथ में प्रगति के साथ साथ में एक सोशल अकाउंटेबिलिटी भी रहे, कि एक चेक जो है समाज का भी रहे कि जो काम हो रहा है उसमें किस स्तर पर प्रगति हो रही है, कितना स्तर तक प्रगति हो रही है, ठीक उसका जो है उसके बारे में विचार सब लोग कर सकें। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आदरणीय तोमर साहब यहाँ विराजे हैं। तोमर साहब ने इसमें जो एग्रीकल्चर फाइनेंस की जो लैंडिंग रेट है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार देती है कृषि पर, जो एग्रीकल्चर फाइनेंस पर, वो देना कृषि मंत्रालय ने इसमें स्वीकार किया है। और अब जो है कम लागत पर इस तरह के प्लांट्स को चालू करने के लिए और जिस इस दिशा में काम जो हुआ है उसको पूरा करने के लिए और अधिक गति प्रदान करने के लिए, इसको और ज़्यादा वायबल बनाने के लिए वो फाइनेंस फैसिलिटी मिलेगी। माननीय धर्मेंद्र जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए जो CNG इससे मिलेगी, उस CBG को भी प्रोक्योरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अगर कम्युनिटी बेस इस तरह का प्लांट बनता है, जैसे उदाहरण अभी बनासकांठा में और देश के अन्य स्थानों पर प्रारंभ भी हो गए, उसको जो है लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट पेट्रोलियम कंपनियां खरीदें उसको, ताकि जो है किसान को या डेयरी को या जो दूसरे लोग मिलकर के सामाजिक सहभागिता से इस प्लांट को बनाना चाहते हैं, PPP मॉडल पे अगर करना चाहते हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से एक
जो है वायबिलिटी उसके कारण से, एश्योर्ड वायबिलिटी उसके कारण से मिलेगी। मैं ये मानता हूं कि ये देश में एक नए जो है स्वच्छता की क्रांति का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं एक बार फिर सबका स्वागत करते हुए सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री गिरिराज सिंह जी से संबोधित करें सर। मैं सर्वप्रथम अपने गजेंद्र सिंह जी को, नरेंद्र जी को, धर्मेंद्र जी, कटारिया जी और तमाम अधिकारियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के नीति और नियत को स्वच्छता के साथ जोड़ करके रखा है, जिसको इन्होंने कहा। आज पूरे दुनिया में 178 कंट्री है। अगर एक तरफ हम स्वच्छता से देखते हैं तो दूसरी तरफ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की ओर देखते हैं, तीसरी तरफ जिसकी बात कहा बायोगैस के लिए। और हम इसमें, मेरा डिपार्टमेंट अग्रसर है, जिसकी चर्चा उन्होंने की। एक पायलट प्रोजेक्ट हमने एक गांव, जकरियापुर गांव में लगाया, जिसका जो रिजल्ट आया, उस गांव में केवल 66 लाख रुपए दूध से अमूल दे रहा था। और जब हमने बायोगैस लगाया, अब बायो सलरी उसका लिया, सेग्रीगेट करके खाद बनाया, तो परिवर्तन आया कि एक तो स्वच्छता आ गया, स्वच्छता आने के साथ साथ किसानों की आमदनी एडिशनल 2 करोड़ बढ़ गया। और 2 करोड़ बढ़ गया। शुरू में वो हमें 2 रुपये किलो दे रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लगभग 30-40% किसानों ने अपनी सैलरी को खेतों में डालना शुरू कर दिया, जिससे उनको एक अच्छा लाभ हुआ। हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसका खाद बना रहा है, मार्केट कर रहा है, और आज पूरे दुनिया में लगभग 178 देश ऑर्गेनिक खाद की ओर जा रहे हैं, जिसकी चर्चा माननीय करेंगे। और भारत भी धन्यवाद योग्य है कि हाँ, ऑर्गेनिक खेती की ओर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अभी भी हम 18% पर हैं। और ये जो 30 करोड़ जानवर हैं देश के अंदर में, ये 30 करोड़ कैटल हैं, बैफेलो हैं। और एवरेज अगर हम 7 किलो गोबर लेते हैं, तो ये गोबर धन, कितना बड़ा धन किसानों के अंदर आएगा, इसकी कल्पना जब हम करते हैं तो किसान के पास खुशहाली की दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में एक तरफ बायोगैस उन किसानों को मिल रहा है, दूसरे तरफ धर्मेंद्र जी का डिपार्टमेंट शहर में और गांव में जो एंटरप्रेन्योर मॉडल ला रहा है, उसके कारण एक नई क्रांति आएगा। और मैं ये कह सकता हूं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, एक तरफ स्वच्छता को ODF की बात की, अब ODF प्लस की ओर जाएंगे तो केवल स्वच्छ ही नहीं होगा, बल्कि हरित क्रांति में एक ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन भी आएगा और ग्रीन गैस भी आएगा, किसानों की खुशहाली बढ़ेगी। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। Now I request Honorable Minister for Petroleum and Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhan ji to address. आदरणीय देश के कृषि मंत्री श्री तोमर जी, पशु संपदा विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी, जल संसाधन और पेयजल विभाग के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री श्री कटारिया जी, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले आज की इस कार्यक्रम में विशेष करके मीडिया की मित्रों के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने दशक पहले जब वो गुजरात की मुख्यमंत्री होते थे, तब से उन्होंने भारत की किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो, भारत में स्वच्छता कैसे बढ़े, जिसके कारण हेल्थ
पर्यावरण और अर्थनैतिक सशक्तिकरण हो, ये सारे में बहुत सारे इनिशिएटिव लिया था। आज उस वटवृक्ष की एक बड़ा कल्पना हम सभी के सामने पेयजल विभाग मंत्री और उस मिनिस्ट्री की ओर से और 2-3 विभागों की जो लोग आज हम यहाँ उपस्थित थे, उसके अलावा भी कुछ विभाग देश में काम करता है, जिसे कहा गया MNRE, शहरी विकास विभाग मंत्री, MSME, वित्त विभाग, ये सभी की कलेक्टिव एफर्ट से वेस्ट टू वेल्थ, जिसकी नाम गोवर्धन योजना कहा गया है, उसमें से विशेष करके बायोगैस बनाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों में अनेक इनिशिएटिव लिया। रिजर्व बैंक ने इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की मान्यता दी है। SBI को नॉमिनेट किया है, इस प्रकार की प्रोजेक्ट जितना भी लगे हो उसको फाइनेंस करे, अन्य बैंक भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसकी कमर्शियल मॉडल, जैसे गजेंद्र जी ने कहा, एंटरप्रेन्योर मॉडल समाज के सामने रख रहा है। कुछ पेट्रोलियम कंपनियां खुद एनर्जी कंपनी करके उसको बनाएंगे। PPP मोड पे भी देश में कितना भी, इस पोर्टल में ये सोचना रहेगा, कितना भी गैस कहीं भी उत्पादित हो उसको ऑप्टेक गारंटी, कोई भी व्यवसाय तब सफल होता है उसकी उत्पादित चीज अगर गारंटी होती है बिक्री करने का। इसकी ऑप्टेक गारंटी हम देते हैं, लॉन्ग टर्म गारंटी देते हैं, और उसकी मिनिमम प्राइस की भी फॉर्मूला ड्रिवन, जो आगे रिवीजन होते होते बढ़ते जाएगा, ऐसे गारंटी भी हम देते हैं। उसकी जो कई प्रोडक्ट आएगी, सिर्फ गैस नहीं आएगी, उसमें मैन्योर भी आएगी। मैं धन्यवाद दूंगा कृषि मंत्री जी को, उन्होंने, उनकी विभाग इन दिनों में इस बायो मैन्योर को भी सर्टिफिकेट दे दिया है, मान्यता दे दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा गिरिराज सिंह जी को। सबसे ज्यादा बायोगैस चिकन लीटर से आएगा, सबसे जो यील्ड आता है इन्हीं की वेस्ट से ज्यादा यील्ड आता है। इस बीच में आज की कार्यक्रम में मैं 2-3 जानकारी सिर्फ आपके सामने दूंगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने 650 एंटरप्रेन्योर को LOI दे दिया है CBG प्लांट लगाने के लिए। कई प्लांट तो लगभग आज देश में 15 CBG रिटेल आउटलेट बन गया है, जो सिर्फ कंप्रेस बायोगैस से CNG निकाल के उसी को ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल करके यूज कर रहे हैं। इसमें 2018 से सतत करके एक अम्ब्रेला पॉलिसी हमारी विभाग उसको शुरू किया है। मित्रों, मैं इसको आज की इस पोर्टल में मल्टी मिनिस्ट्री की जानकारी रहेगी, सोर्स कहाँ से होगी, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, उसकी फाइनेंस कैसे होगी, उसकी बाई प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिक्री हो सकता है, ये सारा जानकारी इस पोर्टल में रहेगा। सिंगल विंडो, कोई भी नागरिक, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी नौजवान उस पोर्टल में जाके 5 मेट्रिक टन से लेके 5 मेट्रिक टन, एक छोटा 2-3 हजार आबादी वाला गांव से ही 5 मेट्रिक टन प्रतिदिन एग्री और एनिमल वेस्ट मिल जाएगा, घरेलू वेस्ट मिल जाएगा। छोटा म्युनिसिपैलिटी कस्बा है, शहरी कस्बा, उनमें से 10-20 मेट्रिक टन ऐसे मलबे मिल जाएंगे, बायो वेस्ट मिल जाएगा। उसी से लेके अभी हम दिल्ली में 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी MOU किया है, 2,500 हजार मेट्रिक टन पर डे। और आप सबने सुना होगा, इंदौर शहर का लगातार स्वच्छ शहर करके देश में नामित हो रहा है। उसकी मूल कारण है, आप कृषि मंत्री जी उसी प्रदेश से आते हैं, मूल कारण है वहां के कचरे को बायोगैस में कन्वर्ट करने का वहां की सरकार और वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मैं अंत में एक आंकड़ा सिर्फ आपके सामने रखूंगा। ये सरकार की, जो हम लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं स्वच्छ भारत में सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं है, कुछ लोग मजाक शुरू में किए थे, लेकिन उसमें से वेस्ट से वेल्थ कैसे निकालना। अभी इसी साल माननीय कृषि मंत्री जी ने, जो 2 दिन पहले आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट में विषय रखे हैं, उसमें से स्टैटिस्टिक्स उन्होंने कोट किया। पिछले साल की MSP 3 कमोडिटी को मैं आपके सामने रख रहा हूं, गेहूं, धान, दलहन, ये तीनों जितना उत्पादित होती है, जिसको सरकार खरीदती है, लगभग 30, 40, 50% सरकार खरीदती है, बाकी चीज डोमेस्टिक कंजम्पशन में चला जाता है। उसमें सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया
अभी एमएसपी देती है, जो देते रहेगी। प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, आने वाले 5 साल के अंदर हम गोवर्धन योजना जैसे इनिशिएटिव से जो आज वेस्ट है, जो आज पर्यावरण को चुनौती देता है, जो स्वास्थ्य खराब करता है, उसी में से एथेनॉल, कॉम्प्रेस बायोगैस और बायोडीजल, ये तीनों बायोफ्यूल से 1 लाख करोड़ रुपया की ऑल्टरनेटिव इनकम हम किसानों को देने की व्यवस्था कर दिए हैं। सीबीजी और इस पोर्टल में जानकारी जो रहेगा उसकी दिशा में एक बड़ी कदम है। एथेनॉल जो 6 साल पहले 0.67% हम अपनी आवश्यकता की ले पाते थे, इसी साल ये 8.5% हो गया और आने वाले 3-4 साल के अंदर ये 20% तक भी चले जाएगा। और तेजी से हम जिस प्रकार के कृषि मंत्री जी, और फिर मैं आभार प्रकट करूंगा पशु संपदा विकास मंत्री का, उन्होंने जिस प्रकार से हमको अनुमति दिया है एथेनॉल बनाने के लिए, आने वाले दिनों में फिर मैं कहूं 1 लाख करोड़ रुपया की नया ऑल्टरनेटिव इनकम किसानों को ग्रामीण अर्थनीति में आएगा। गोवर्धन पोर्टल ये सारे जानकारी की एक मूल सोर्स रहेगा। आज हम प्रधानमंत्री जी की इस विजन को देश के लिए समर्पित करते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि हमें संबोधित करें सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु और आयोजक हमारे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, पशुपालन मत्स्य पालन डेयरी विकास मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, राज्य मंत्री माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी, सचिवगण, अन्य अधिकारीगण और उपस्थित मित्रों, आज हम सबके लिए ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है जब ओडीएफ प्लस के एक मुख्य घटक को आगे बढ़ाने के लिए और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए गोवर्धन एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर श्री गजेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम को इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि हमारे प्रकृति ने ही एक दूसरे की पूरकता का संदेश दिया है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी, उत्पादन, उत्पादकता, बाकी और नए साधनों का उपयोग अपनी आय के लिए किए जाने के फलस्वरूप बहुत सारी जो प्राकृतिक पद्धतियां थीं वो टूटी और उसके परिणाम स्वरूप विकृतियों ने जन्म लिया। गंदगी भी इसी दिशा में एक विकृति के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित है। एक समय था जब तकनीक नहीं थी, वेस्ट का बहुत उपयोग नहीं था, लेकिन उस समय ग्रामीण जनजीवन को देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि कुछ भी वेस्ट नहीं था। मैं गांव का रहने वाला हूं, शायद 1 किलो गोबर भी व्यर्थ नहीं जाता हो, चाहे उसका कंडों के लिए उपयोग हो,
चाहे उसका खाद के लिए उपयोग हो, लेकिन ऐसा एक ताना बाना बना हुआ था जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि पुरातन कालीन हमारी पद्धति में भी वेस्ट कुछ नहीं था, हर चीज का उपयोग सुनिश्चित था। और उस समय गांव में लोगों को, जो लोग नहीं रहे होंगे उनको लगता होगा कि गंदगी ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि उस कालखंड में भी शहरों से अधिक स्वच्छता ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिगत होती थी। लेकिन जब ये सब परिस्थिति हम सबके समक्ष खड़ी हुई तो सरकारों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए, सामाजिक क्रांति भी हुई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी, ऐसे 2 मिशन आरंभ उनके नेतृत्व में किए गए। हम सब जानते हैं कि जब कोई भी क्रांति की शुरुआत होती है तो पहले उपहास होता है, फिर कुछ बाधाएं आती हैं और अंततोगत्वा उस पर विजय प्राप्त हो ही जाती है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की दृढ़ संकल्पना, देश की जागरूकता और देश के अनान्य नागरिकों की भागीदारी के परिणाम स्वरूप आज हमारा देश ODF हो गया है। और इसके सदपरिणाम समग्र क्षेत्र में हमको दिखाई दे रहे हैं, चाहे सामाजिक ताने बाने में सुधार की दृष्टि से हो, चाहे मनुष्य की आदत परिवर्तन की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो विपरीत असर थे उनसे बचाव के मामले में हो, हर क्षेत्र में इसका लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है। आज हम जब ODF प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो उस दिशा में यह एकीकृत पोर्टल निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं। इतनी बड़ी देश की आबादी और उसमें पशुओं की भी बड़ी आबादी, तो गोवर्धन जो है ये निश्चित रूप से बड़ी संपदा है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने के बाद गोबर की दुर्गति हो गई, लेकिन अब इसको संपदा के रूप में परिवर्तन किया जाए, इस दृष्टि से सरकार के प्रयत्न हैं। उन प्रयत्नों का परिणाम आज हम सबके सामने परिलक्षित हो रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज चाहे हमारे पशुपालन मंत्री जी हों, पेट्रोलियम मंत्री जी हों, नेचुरल गैस भी उनके पास ही है, ये सब लोग मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समग्र भारत सरकार इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे और इस काम को आगे बढ़ाए, जिससे हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ इसको एक आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित कर सकें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में गांव में रहने वाले गरीब आदमी, गांव में रहने वाले पशुपालक और किसान, इनकी आमदनी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी करने में यह योजना काम आवे। इस दृष्टि से जब एक और नोडल मिनिस्ट्री के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत जी का संकल्प देखता हूँ और दूसरी तरफ हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी उसको कैसे अच्छी कीमत उपलब्ध करा सकते हैं, उनकी गंभीरता को देखता हूँ, तो मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि यह योजना आने वाले कल में हमारे सामने विद्यमान जो चुनौतियां हैं
उन पर विजय प्राप्त करने में बहुत मददगार होगी। जहाँ तक मेरा सवाल, मेरे मंत्रालय का सवाल, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे ग्रामीण विकास के सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, और हमारे गिरिराज जी का मंत्रालय, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आपके द्वारा निर्धारित किए गए जो लक्ष्य, उनको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त करने में सफलता अर्जित करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, गोवर्धन पोर्टल से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। कैन यू जस्ट यूज द नंबर प्लीज, नंबर 10। सर, व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है बड़ा विजनरी प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैं आपको, सरकार को बधाई देती हूँ, क्योंकि ग्रामीण भारत में वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये प्रोजेक्ट मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि सेल्फ सस्टेनेबल है, इसको किया जा सकता है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और मैंने बहुत बारीकी से चीज़ों का अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन लेवल पर हम फेल हो जाते हैं। इसकी आज देश को बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से आप देखते हैं, पराली अपने आप में हर साल एक बड़ा इशू होता है। वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना गांव के लिए बहुत जरूरी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एग्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर काम नहीं करेगा तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या उसको लेके कोई रणनीति सरकार की तरफ से बनाई गई है, स्पेसिफिकली जो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है? धन्यवाद आपने फॉर योर अप्रिशिएशन। देखिए, ये निश्चित रूप से ऐसे कटु अनुभव देश में जनता को परंपरागत रूप से रहे हैं, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से इन सारे विषयों के एग्जीक्यूशन में ट्रांसपेरेंसी ला करके ये आज जो पोर्टल लॉन्च किया गया, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि स्कीम को कोई भी व्यक्ति जा कर के देख सकता है, किस स्तर पर काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम रुकावट है, उसे किससे संपर्क करना, इन सब विषयों की जानकारी इस पर रहेगी। मुझे लगता है कि जो आपका जो भय है वो निश्चित रूप से, आपका जो डर है वो निश्चित रूप से जो है पहले इस देश में इस तरह की व्यवस्थाएं रहा करती थी, उसके कारण से जायज़ है। लेकिन मैंने जब अपनी बातचीत में भी कहा था कि ट्रांसपेरेंसी और सोशल अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये पोर्टल, ऐसा डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट किया गया। 37। हेलो सर, नमस्कार सर। ये जो कैटल का है आप लोग कर रहे हैं इसमें, सो कैटल में क्या RFID टैग्स लगेंगे? कैटल को कैसे उसको डोमेस्टिकेट करेंगे सर? ऑलरेडी भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम टैग लगा रहे हैं। लगभग 14-15 करोड़ जानवर तक पहुंच गए हैं और पूरे देश में जितने जानवर हैं उनको एक आधार पोर्टल पर ला रहे हैं। जैसे आदमी का आधार नंबर है, पशुओं का भी आधार नंबर। लास्ट क्वेश्चन 39। सर, इस योजना को गांव के लेवल पर जब आप लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ग्रामीणों की भागीदारी किस तरह से होगी? क्योंकि पोर्टल डिजिटल है, क्या वहाँ गांव में कोई मैकेनिज्म होगा जहां पर ग्रामीण जाके कोऑर्डिनेट कर सकें और कैसे उनको फायदा पहुंचेगा सीधा? कुछ जानकारी दे सकते? देखिए, 2-3 तरह के मॉडल्स जिसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने किया था। 2-3 तरह के मॉडल्स जहां जैसी परिस्थिति या आवश्यकता उसके अनुरूप बनाए गए हैं। एक डेयरी बेस्ड मॉडल हो सकता है, जो हो सकता है और है, जो देश में जिसने काम करना प्रारंभ कर दिया है। बनासकांठा में, गुजरात में जो पायलट किया गया था, जहां दूध का संग्रहण स्टेक होल्डर से, फार्मर से, पशुपालकों से किया जाता है, उसी के साथ साथ में उसी मैकेनिज्म के आधार पर जो है वो गोबर का कलेक्शन भी उन्हीं पशुपालकों से होता है, जिनको एक फिक्स प्राइस गोबर की दी जाती है। उस गोबर को वो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके और उसकी गैस बना करके और खाद बना करके बेचते हैं।
दूसरा जिसका उल्लेख आदरणीय गिरिराज सिंह साहब ने किया, जकरियापुर मॉडल, वो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, जिसमें प्रत्येक गांव में ऐसा जो है प्रत्येक घर में ऐसा छोटा छोटा प्लांट लगाया जाता है। गैस को डोमेस्टिक यूजर खुद यूज करता है और उसका जो स्लरी है उसको एक जगह निकाल करके एक ही जगह प्रोसेस करके काम किया जाता है और उसको बाद में उसको कमर्शियली यूटिलाइज किया जाता है। तो ये भारत इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है, हर एक जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से अलग अलग तरह के स्कीम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ स्कीम जो है हमने गौशालाओं के लिए भी एक अलग से डिज़ाइन की है, स्टेट से हमने बात की है। राज्य सरकारें जहां जैसा उपयोगी समझेंगी उस तरह से इस पर काम करेंगे। और क्योंकि ये वर्ष इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी कल ही हमने परसों बजट अनाउंसमेंट में हमने देखा कि सैनिटेशन पर स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो है 1,41,638 करोड़ रुपए की योजना की जो है वो घोषणा की है। और इसके साथ साथ में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी जो परसों टेबल की गई उसमें भी सैनिटेशन के लिए अगले 5 साल के लिए लगभग 72,000 करोड़ रुपए का अनुदान जो है पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि इस समय ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके माध्यम से देश को जो है स्वच्छता के दूसरे स्तर तक ले जाने में निश्चित रूप से ग्रामीण भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यदि बात करूं तो उसको स्तर पर ले जाने के हम कामयाब होंगे। सर एक और प्रश्न आ गया, लास्ट 22। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ गुड इनिशिएटिव। मेरा सवाल सर, ग्रामीण स्वच्छता से अलग जो स्वच्छता अभियान हम 2.0 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जो देश का केंद्र है दिल्ली, उसके बॉर्डर्स पर अभी भी कूड़े के पहाड़। मेरा सवाल उससे था, अगर कुछ जवाब देना चाहें आप, कि उसके लिए कुछ डेडलाइन तय की गई है मंत्रालय की तरफ से कि इतने लंबे वक्त से ये अभियान शुरू है फिर भी निजात नहीं मिल पा रही। मैंने देखिए, ये जो दिल्ली की गाजीपुर सबसे सबकी ध्यान में आती है। दिल्ली की गाजीपुर में बड़ा ढेर लगा है। इस बीच में हम लोगों ने दिल्ली में 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक NDMC जहां हम लोग बैठे हैं, 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की है और एक दिल्ली कैंटोनमेंट। पांचों के साथ हमारी पेट्रोलियम विभाग की 5 कॉरपोरेशन से बातचीत चल रही है। 2 के साथ तो 2,500 मेट्रिक टन पर डे उसको कन्वर्जन करने के लिए हमने MOU कर लिया है। उसकी तुरंत काम भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और NTPC दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक फिर MOU किया है कि गाजीपुर में उस कचरे को प्रोसेस करके गैस निकाल के गैस से बिजली बनाना, इसकी भी एक इनिशिएटिव पायलट मोड पे शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा इस बार बजट में और में बड़ा उल्लेख गया है कि जो स्वच्छता के लिए, जिसको गजेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया कि स्वच्छता के लिए जो लीगासी वेस्ट की पहाड़ है, जो थोड़े देर पहले मैंने इंदौर के उल्लेख किया, ये पहले अकल्पनीय था। उसके बारे में तेजी से मोदी जी की सरकार काम कर रही है। हमें उम्मीद है स्थानीय सरकारों की सहयोग अगर ठीक से मिलेगा तो सारे कचरे को हम संपदा में परिवर्तित कर देंगे। उसी दिशा में ही काम चल रहा है। धन्यवाद सर। मैं एंटायर स्पेस सभी डिग्निटरीज का धन्यवाद करता हूँ। फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आपको जो है 4th फ्लोर पे लंच का अरेंजमेंट किया है, प्लीज ज्वाइन फॉर लंच। थैंक यू वेरी मच। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।